33B. क्या होता है 33B? Reservation of certain seats on committee of society and election thereto. Notwithstanding anything contained in the Act, rules on the committee of such class of societies as the government may general, one of the members belonging to the scheduled caste or scheduled tribes, one of the members belonging to other backward class, one of the members belonging to the notified tribes. ये हमने देख लिया, एक सीट 3 लोगों के लिए हर सोसाइटी में, हर कैटेगरी का सोसाइटी में 3 ही सीट्स रिजर्व है। भले उसमें मेंबर्स कितना है इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, 3 ही हर समय रिजर्व रहेगा। Any individual member of society or elected member of the committee or the member of any member of the committee or the member of society, whether elected, co-opted, appointed under this backward class, middle class, etc., shall be eligible to contest the election to reserved seats, and every person who is entitled to vote at the election to be committee shall be entitled to vote on the election of such reserved seat. मतलब these people can be entitled. These are the only people who are entitled to contest in this reserved seats. Other people cannot. Where no person is elected out of these 3 reserved seats, then the seat shall be filled in by nomination among the members, the person entitled to contest the election under subsection 3. अभी ये क्या लिखता है? When no person is elected to any of the 3 seats, reserved seats, then such seats or seats shall be filled in by nomination from amongst the persons entitled to contest the election under subsection 3. अभी subsection 3 क्या बोलता है? We have to go to subsection 3. Subsection 3 इधर है subsection 3. हाँ, तो ये जो 3 सीट्स है, अगर अभी के टाइम में अभी इमीडिएटली इलेक्शन के टाइम पे अगर फिल नहीं होता है, तो अगर बाद में भी अगर आपको फिल करना है अंडर लेटर स्टेज, these seats can be filled up only by those category of candidates. It cannot be filled up by any other candidate. या बैकवर्ड क्लास शेड्यूल कास्ट का डेफिनेशन क्या है वो आपको नहीं पूछेगा। इलेक्शन की जरूरत है, विदाउट इलेक्शन इट कैन नॉट बी फिल्ड बाय नॉमिनेशन। हां, नॉमिनेशन, ये वाला नॉमिनेशन अलग है। ये वाला नॉमिनेशन कौन सा है? इलेक्शन के टाइम में आप नॉमिनेशन पेपर जो भरते हो, वो वाला नॉमिनेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया। तो यू हैव टू फाइल द नॉमिनेशन पेपर and then after following the due process only you will get elected. वो नॉमिनेशन मतलब नॉमिनेट करके आने वाला वो नहीं है। बिल्डिंग में नॉमिनेशन मतलब आपको इलेक्शन में कंटेस्ट करके नॉमिनेशन में फॉर्म भरता है ना आप लोग, जैसा एमपी एमएलए कभी इलेक्शन में नॉमिनेशन फॉर्म भरता है ना जाके, वो नॉमिनेशन है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द अदर नॉमिनेशन। 73C इज रिजर्वेशन फॉर विमेन, वो भी हमने पढ़ा। एनी कैटेगरी ऑफ सोसाइटी 2 सीट्स will always be reserved for women. कम हो ज़्यादा हो, 2 seats are reserved for women always. और women candidates ही contest कर सकता है। अगर vacant रहेगा, बाद में fill up करने का रहेगा तो women candidates ही उसमें आ सकता है। No persons are available, then those seats are have to be kept vacant. This is 73C. Now 73CA. पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन था, जिसमें हम लोग मेंबर्स को बाय ब्रिंगिंग दैट मोशन यू कैन डिस्क्वालिफाई समबडी और यू मे रिमूव दैट पर्सन फ्रॉम दैट पोस्ट, नॉट फ्रॉम द कमिटी। बट नाउ दिस प्रोविजन ऑफ 73CA इज डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कमिटी एंड इट्स मेंबर्स। उसमें और इसमें यही फर्क है जो मैंने आपको पहला बोल रहा था, कमिटी से आप उसको बाहर नहीं निकाल रहे, बट इस प्रोविजन से कमिटी से आप बाहर निकालोगे। Same provision is available for housing societies under 154B23. 154B23 आप देखेंगे तो आप एक बार जाइए 154 में। आपको दिख रहा है सिमिलर प्रोविजन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कमिटी एंड इट्स मेंबर्स 154B23 हाउसिंग सोसाइटी के लिए है, बाकी सोसाइटीज के लिए सेक्शन 73CA।
और ये जो सेक्शन 73CA है वो हाउसिंग सोसाइटीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वहां पे डिलीटेड है, आप देखो एडजस्टमेंट 154B23 तो ये क्या बोलता है, इन द केस ऑफ सोसाइटी व्हिच गिव्स लोन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा इंक्लूडिंग गुड्स without prejudice to the other provisions of the act or rules in relation to disqualification of member of the committee. Now what does this mean? Without prejudice to the other provisions of this act or the rules made thereunder. तो मतलब क्या है? What is the difference between without prejudice and what is the difference between without prejudice and notwithstanding? इस दोनों में क्या फर्क है? Notwithstanding any other provision of the act हमने पहला पढ़ा था। इसमें बोलता है without prejudice to the any other section, इसका मतलब क्या है? फर्क क्या है दोनों में? नहीं, without prejudice to the other provisions of this act, मतलब दूसरा अगर कोई प्रोविजन के अंदर अगर वो क्वालिफाई हो सकता है तो वो यूज कर सकता है, उसका मतलब वो है, आप समझे? यू गॉट माय पॉइंट? विदाउट प्रेजुडिस, वो दूसरा कोई उसका प्रेजुडिस मतलब क्या है? प्री जज करना। प्री जज मतलब पहले विदाउट डूइंग एनीथिंग आप मन में ऐसा बना लेते हो कि ये आदमी बुरा है, उसको प्री जज करते हो। तो प्री जज करके क्या होता है, उसके ऊपर एक ऐसा एक परमानेंट एक उसके ऊपर एक एलिगेशन या ये डब्बा लग जाता है कि ये आदमी बुरा आदमी है। दैट इज कॉल्ड एज प्रेजुडिस। यू आर प्रेजुडिसिंग समबडीज माइंड, मतलब आप किसी के बारे में किसी को उसके बारे में गलत एक अंदर से एक ओपिनियन एक क्रिएट करा रहे हो, एक जजमेंटल हो रहे हो उसके बारे में, तो इट इज कॉल्ड एज प्रेजुडिस। विदाउट प्रेजुडिस somebody, so without prejudice to the other provisions of this act, मतलब अगर कोई दूसरा प्रोविजन के अंदर उसको राइट रहेगा मैं डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए करके वो प्रोविजन वो यूज कर सकते, उसको मैं हाथ नहीं लगा सकता। नॉट विथस्टैंडिंग बोलेगा तो भले दूसरा कोई भी रहेगा बट मैं ये यूज करूंगा। दैट इज द डिफरेंस, नॉट विथस्टैंडिंग एंड विदाउट प्रेजुडिस का फर्क है। तो विदाउट प्रेजुडिस टू द अदर प्रोविजन इन रिलेशन टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, दूसरा प्रोविजन होगा उसको मैं हाथ नहीं लगा रहा हूं, बट इस प्रोविजन के हिसाब से मैं बढ़ रहा हूं आगे। No person shall be eligible for being appointed, nominated, elected, co-opted, etc., etc. if he is a defaulter of the society, of any society. It is given of any society. What does that mean? Any society मतलब वो कोई भी सोसाइटी का मेंबर हो सकता है। ये बोलता है जनरल क्लॉज क्या बोलता है 73CA में, आपने दूसरा सोसाइटी का डिफॉल्ट किया, वहां पे अगर आपने डिफॉल्टर कैटेगराइज हो गया तो मेरा भी सोसाइटी का इलेक्शन में आप कंटेस्ट नहीं कर सकते। डिस्क्वालिफिकेशन मतलब कंटेस्टिंग भी आता है उसके सामने। अब ये भी आप साथ साथ में रीड अलोंग विद दैट। इफ समबडी इज इलेक्टेड he will be disqualified. If somebody is wanting to contest he will be disallowed. Both the provisions are applicable. बराबर है? So if he is a defaulter of any other society also, then also he cannot contest. हाउसिंग सोसाइटी, Any society है। हाउसिंग के बारे में हम लोग बात ही नहीं कर रहे। हाउसिंग को दिमाग से हटा ही दो। हाउसिंग साथ में आ रहा है इसके साथ में, बट स्पेसिफिक हाउसिंग का प्रोविजन 154B23 में वो भी पढ़ के बताऊंगा मैं आपको। बट 73CA के हिसाब से डिफॉल्टर ऑफ एनी सोसाइटी, अगर आप बैंक का मेंबर हो और आप क्रेडिट सोसाइटी में भी मेंबर हो दूसरा, या फिर इरिगेशन सोसाइटी में या कोई फार्मिंग सोसाइटी में मेंबर हो और वहां पे आप डिफॉल्टर हो, तो भी आपको इधर से डिस्क्वालीफाई कर देंगे। यू कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द मैनेजिंग कमिटी। यू गॉट द पॉइंट? अभी आपको पता कैसा पड़ेगा? हाउ विल यू कम टू नो दैट ही इज अ डिफॉल्टर इन अदर सोसाइटी? कौन जाएगा हर समय रजिस्टर? यस, फॉर्म भरना पड़ता है। मतलब whenever you are filing nomination form बोला उधर, so whenever you file nomination there is a self declaration है। 1 2 3 जितने भी disqualification factors है, I do not fall under this category ऐसा करके चारों को नीचे आपको साइन करना पड़ता है। It's a self declaration, but it can be re-verified by the returning officer. The returning officer, there is a process wherein there is a time given to the returning officer for scrutiny of the nominations. एक स्क्रूटिनी का प्रोसीजर होता है। रिटर्निंग ऑफिसर क्या करता है?
जितने भी एप्लीकेशंस नॉमिनेशंस आए हैं उनके पास, उसको स्क्रूटनाइज करता है एंड स्क्रूटनी करते समय ये क्वेश्चंस वो पूछता है, कैंडिडेट को भी पूछ सकता है, कमेटी को भी पूछ सकता है, सोसाइटी को भी पूछ सकता है, सबको कुछ एक्चुअली उसको पूछना है। उसका जो ऑब्जेक्ट है काम करने का, जो उसका स्कोप है, वो स्कोप के अंदर इंक्वायरी एक पर्टिकुलर पोजीशन, एक स्टेज है, वो स्टेज में उसको पूछना है। When that inquiry, if he finds out that somebody is a defaulter and if he has not declared, he can straight away disqualify that candidate. Returning officer के पास authority. So you cannot contest if you are a defaulter of any society. First. Second, in case of primary agricultural society, a member who defaults to payment of crop loan. ये सिर्फ agricultural society के लिए लागू है। वहाँ पे क्या है, क्रॉप लेने के लिए, खरीदने के लिए लोन लिया हुआ है और उसने डिफॉल्ट कर दिया, ड्यू डेट हो गया और उसने पैसा नहीं भरा, तो ही कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द मैनेजिंग कमिटी। लेकिन उसने फॉर्म में लिख के दिया डिफॉल्टर नहीं हूं, जब इंक्वायरी होगा तो भी बोला नहीं जानता, बट वो जब उसको मालूम पड़ेगा ना डिफॉल्टर, सोसाइटी तो बोलेगा ना हाँ ये डिफॉल्टर है, लेकिन ये पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए नहीं है और किधर बाहर है, बात होगा तो भी उसने फॉर्म में तो लिख के दिया। इंक्वायरी ऑफिसर का काम क्या है कि अब जब आप आई रजिस्टर और आपका जो डिटेल्स जब सोसाइटी में देते हो, या तो आप छुपा सकते हो कि मैं दूसरा कोई सोसाइटी का मेंबर नहीं हूँ, या तो आपको फिर बताना पड़ेगा कि मैं दूसरा सोसाइटी का मेंबर हूँ। अगर आपने छुपाया कि मेंबर ही नहीं हूँ मैं दूसरा सोसाइटी का, तो शायद मुश्किल होगा इसको ढूंढने के लिए कि कहाँ जाके पता करेगा। बट अगर आपने डिक्लेयर किया मैं और 3 सोसाइटी का मेंबर हूँ, तो एटलीस्ट वो 3 सोसाइटी से पता करेगा ना कि ये डिफॉल्टर है कि नहीं। और इलेक्शन होने के बाद चुन के आया उसके बाद पता चला, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कमिटी है ना, ये एंड इट्स मेंबर्स ही है ना। मैं उसने लिए बोला या तो इलेक्शन के पहले ही हो सकता है, या चुनने के बाद भी हो सकता है, या चुनने के बाद अगर वो डिफॉल्टर हुआ तो भी हो सकता है। पेनल्टी वगैरह कुछ नहीं, 3 स्टेज हो सकता है इसका। इलेक्शन में कंटेस्ट करने से पहले कंटेस्ट ही नहीं कर सकता, गलत बोल के कंटेस्ट किया बाद में मालूम पड़ा तो भी हो सकता है। कंटेस्ट होके इलेक्ट होके 2 साल के बाद डिफॉल्टर हुआ तो निकाला जाएगा। एट एनी स्टेज दिस इज एप्लीकेबल। व्हाट द पॉइंट? इन केस ऑफ टर्म लेंडिंग सोसाइटी, अ मेंबर हु डिफॉल्ट्स ऑन पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट, ये सब लोन के रिलेटेड मैटर्स हैं। इन केस ऑफ एनी सोसाइटी, मेंबर हु हैज टेकन एडवांस और अ मेंबर हु हैज परचेज्ड एनी गुड्स कमोडिटीज, ये देखिए बेसिकली क्या बोल रहा है कि पर्सन हु हैज taken any kind of financial assistance aid from the society and he has not repaid that particular on that particular due date is categorized as a default। और जिस दिन वो नहीं पे कर पाया, अगर वो डिफॉल्टर हो गया, then he is not entitled to contest the election। Whether he is entitled to vote, the answer is yes, but whether he is entitled to contest, the answer is no। तो वोटिंग पावर्स है, मेंबर रहेगा, वोटिंग राइट्स रहेंगे उसके, बट कंटेस्टिंग राइट्स नहीं रहेंगे। क्यों कंटेस्टिंग राइट्स नहीं रहेगा? क्यों? क्यों? हाँ तो क्या क्यों? उसको डिस्क्वालीफाई क्यों करना चाहिए? पेमेंट नहीं आया ठीक है ना, कमेटी में क्यों नहीं आना चाहिए? खुद कमेटी ही डिफॉल्टर है तो बाकी मेंबर को क्या बोलेगा वो कि तुम डिफॉल्ट मत करो? इसके लिए कमेटी में नहीं आना। वजह वही है, कमेटी मेंबर ही चोर है तो चोर नहीं, डिफॉल्टर चोर नहीं है। क्यों इतना क्यों गलत लगा सर? चोरी है ना, सिर्फ क्रॉप लोन बोले ना, अभी सब करोड़ नींद खुल गया। आप डिफॉल्टर हो लगता है ऐसी सोसाइटी में। अरे मेंबर भी नहीं है मैं तो। आप कुछ भी बोलो, आप कोई भी टर्म यूज करो, डिफॉल्टर है, चोर है, फ्रॉड है, कुछ भी बोलो चलेगा। बट सोसाइटी का बदमाश है, सोसाइटी का पैसा नहीं भरने वाला आदमी, वो आप कोई भी टर्म यूज करो उसके लिए लागू है। सिंपल है, एकदम सिंपल। फायदा ले रहे हैं। हाँ, देखो बाकी लोग आपके वजह से तकलीफ झेल रहे हैं, वो आप समझ में नहीं आ रहा। आप पैसा नहीं भर रहे हो, ऐश कर रहे हो, वो पैसा और किधर यूज करो, शेयर मार्केट लगा लो। मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे बोलता है साल का 21% से ज्यादा आप इंटरेस्ट नहीं ले सकते, शेयर मार्केट में उसको 30% मिलता है, वो पूरा साल भर नहीं बोलता है। शेयर मार्केट में से 30% कमा लेता है वही पैसा से, और बाद में अगर 21% इंटरेस्ट के साथ भर देता 9% फिर भी फायदा है। ऐसा बहुत सारे लोग घुमाता है, पैसा घुमाने का बहुत सारे तरीके हैं। मैं तो शेयर मार्केट ऐसी एक एग्जांपल दिया
मेरा मुद्दा अलग था। मेरा मुद्दा ये था कि सोसाइटी को देने वाला जितना रिस्पेक्ट और जितना इंपॉर्टेंस है वो दिया नहीं जाता है। वो पैसे को लेके और किधर इन लोग यूज करते हैं, वो मैं बोलूँ। हाँ 21% है ना, वो तो बहुत सारी सोसाइटी तो 15-18 में ही रोक दिया, 21 तक पहुंचा भी नहीं, 12% में भी रोका है बहुत सारी सोसाइटी, 12% ही लेंगे हम। तो ठीक है ना, इसको अच्छा है। मैंने कहा 1%, मैं तो मेरा पैसा बाहर मनी लेंडिंग में भी देता हूँ, तो मैंने कहा मेरे को 3% में, तो मैं 3% में देके 2% पैदा करो और 1% सोसाइटी को बोल दूंगा, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉपर्टी टैक्स पे फाइन 22%, प्रॉपर्टी टैक्स तो 3% का तो वैसे तो क्या है ये सब डिफॉल्टर इसके लिए, मैंने चोर इसके लिए बोला, मुझसे निकला अपने आप से, मैं सोच के नहीं बोला। मतलब गलत आदमी गलत किया, सोसाइटी का पैसा चुराया है ना उसने, नहीं भरा मतलब चुराया, तो नहीं होना चाहिए ऐसा। He has to pay. That's why a defaulter is not allowed to contest. He should not set wrong example. और सर अगर एमसी अगर पहले क्लियर करके बाद में डिफॉल्टर होता है तो MC कौन है? एमसी मैनेजिंग कमेटी इफ एनीवन तो क्लियर द ड्यूज ये एंड आफ्टर दैट इज डिफॉल्टर। ये प्रोविजन क्या है सर? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कमिटी बोला है ना, मतलब वो कमिटी का मेंबर है तभी डिस्क्वालीफाई होगा ना। मैंने आपको एडिशनल एक बताया कि कंटेस्ट भी नहीं कर सकता वो। आप कभी भी समझो कि कोई चीज से आदमी डिस्क्वालीफाई होता है तो वो पर्टिकुलर चीज के लिए वो एलिजिबल भी नहीं है, ये रूल ऐसे ही है। बट उसने पहले पे कर दिया, एलिजिबल हो गया, अभी वो 2 साल से कुछ नहीं भर रहा है तो डिफॉल्टर हो गया ना, फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसका डिस्क्वालिफिकेशन है, कौन प्रोसीड कर सकता है, मेंबर के एमसी? समझा नहीं? अगर 2 साल से इसने कुछ भरा नहीं सोसाइटी को तो उसका किसको चाहिए पैसा? कमेटी को चाहिए, कमेटी को नहीं चाहिए, सोसाइटी को। सोसाइटी को रिकवरी डालेगा। हाँ डिक्लेयर डालने से पहले डिफॉल्टर को डिक्लेयर करेगा उसको। हाँ। जिस दिन डिफॉल्टर डिक्लेयर किया उस दिन रजिस्टर को लिखेंगे ये डिफॉल्टर है, इसको हटाना है कमेटी से। तो मेंबर लिखेगा कि ट्रेजरर वगैरह एनी नॉन कमिटी मेंबर? कमिटी ना, कमिटी विल अप्रोच द रजिस्टर ना। बट इफ कमिटी नॉट वांट टू इनिशिएट देन मेंबर कैन वो- इनिशिएट और नॉट? अभी मैंने एग्जांपल दिया ना, तो आपका साइड वाला सोसाइटी में वाला भी जा सकता है। क्या पड़ा है? मैं तो मैं बोल रहा हूँ कोई भी जा सकता है, एनीबॉडी कैन गो एंड कोई गलत किधर हो रहा है एज ए सोसाइटी एट लार्ज। मैं भला कर रहा हूँ ना, सोसाइटी देश का भला कर रहा हूँ। चलो सिटीजन ऑफ इंडिया, कोऑपरेटिव मूवमेंट। कोऑपरेटिव मूवमेंट। सर कोई 2023 में डिफॉल्टर था, उसने सब क्लियर किया, वो सब पैसा भरा, और 2024 में इलेक्शन लड़ा, तो उसके बाद वो कंटिन्यू भर रहा है, तो वो पैसे नहीं लगेगा। जिस दिन आप फॉर्म भरते हो उस दिन ही डिक्लेरेशन है। मैं 3 साल पहले चोर था ऐसा तो नहीं लिखा। तो अभी अच्छा अभी रिफॉर्म हो गया ना, अभी रिफॉर्म चोर है, अभी अच्छा आदमी है। पीछे आएगा, पीछे आएगा, पीछे आएगा। In case of non-agricultural member who defaults on payment of installment of loan, ठीक है? In case of housing societies, a member who defaults the payment of dues of society within 3 months on place of service of notice in writing served with post and certificate of posting demanding the payment. 3 महीने के बाद में हाउसिंग सोसाइटी में अगर कोई पे नहीं करता है, बिल बोल रहे हैं यहाँ पे विदिन 3 months ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस इन राइटिंग, तो जो आपके बिल्ड अमाउंट जितना भी है एवरीथिंग इज इमोड, एवरीथिंग इज कंसीडर्ड नाउ। पहले क्या था 2013 का अमेंडमेंट के पहले ओनली सर्विस चार्जेस का डिफॉल्ट था। आप सिंकिंग फंड और ये करते थे ना, वो रिकवर आप वो रिकवर नहीं कर सकते थे, मतलब इट वाज नॉट अलाउड टू बी रिकवर्ड थ्रू अ रिकवरी प्रोसीडिंग, ओनली सर्विस वाज अलाउड। 2013 के बाद बोला सब कुछ सोसाइटी को चाहिए ना, सर्विस अब फिर वो ये बनेगा वो नहीं बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं बनेगा, अब डिफॉल्ट। Second point, has in the opinion of the registrar deliberately committed breach of cooperative discipline with reference to linking up credit with cooperative marketing or cooperative processing। मतलब जो भी cooperative जैसा हम लोगों का जो डिसिप्लिन है, जो डिसिप्लिन क्या मेंटेन करना चाहिए कोऑपरेटिव मूवमेंट के अंदर, जो भी दिया है, ऑब्जेक्ट्स के अंदर दिया है या फिर एक्ट के अंदर दिया है, रूल्स के अंदर दिया है, कोई भी किसी चीज में ब्रीच किया तो इज ब्रीचिंग द कोऑपरेटिव डिसिप्लिन।
डिसिप्लिन एक सेट करके रखा है, उसको आप ब्रीच करोगे तो then the society registrar can take a decision of disqualifying that person. Obviously on show photo भी कर सकते हैं, but complaint होगा तो वो करेगा. Third point, has been responsible under section 79 or 88 or has been held responsible for payment of cost of inquiry under section 85. ये हम लोग पीछे पढ़ेंगे 79, 88 और 85. क्या ये इंक्वायरी है? इंक्वायरी फिर उसके ऊपर कॉस्ट लगाते हैं कि आप ये इंक्वायरी करने का कॉस्ट आपसे हम रिकवर करेंगे. ये अगर ये सेक्शन के अंदर उनके अगर कभी ना कभी कुछ if he is held responsible, then also he cannot contest the election or he will be disqualified. Has incurred any disqualification under the act or the rules made thereafter or by the bylaws. bylaws का अगर breach है तो भी disqualify हो सकता है. Or carry the business of the kind carried by society either in the area of operation or contravening the provision. मतलब business carries on business of the kind carried on by the society. सोसाइटी जो बिजनेस कर रही है, सोसाइटी जो पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी या पर्टिकुलर एक स्कोप में काम कर रही है, वो सेम स्कोप का काम मेंबर नहीं कर सकता. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला जो मैटर है ना, वो ये बता रहे हैं. फॉर एग्जांपल हाउसिंग सोसाइटीज में क्या बोलता है, हम लोग इधर हाउसिंग सेक्टर में, हाउसिंग सोसाइटी मतलब हाउसिंग सेक्टर, तो कमिटी मेंबर कैनॉट बी ए ब्रोकर, कैनॉट बी ए रियल एस्टेट एजेंट, बिकॉज ही इज आल्सो ऑपरेटिंग इन द सेम सेक्टर. So if he is a real estate broker or agent doing business in the own society, बाहर कर सकता है, but he should not be doing business in the same society because the same society और आपका conflict of interest है. तुम सेक्रेटरी रह के तुम्हारा ये सोसाइटी का अगर घर बेचना है या फिर भाड़े में लगाने लगा, फिर आपके हिसाब से चलेगा ना पूरा. You will be controlling the entire show. वो नहीं होना चाहिए बोल के वहाँ पे he is disturbed. तो अलग-अलग सोसाइटी का अलग-अलग. अभी बैंकर एक है, बैंक में काम कर रहा है, वो खुद एक मनी लेंडिंग का बिजनेस नहीं करना चाहिए. ऐसा एक कोई बिजनेस नहीं करना चाहिए कि वो खुद पैसा किसी को दे रहा है इंटरेस्ट में. बैंक से तो दे रहा है, मेंबर है वो बैंक का, बट वो खुद अपना पर्सनल मनी लेंडिंग बिजनेस भी कर रहा है. तो दैट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. कमिटी 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 होल कमिटी एंटायर कमिटी. Pardon? हाँ. सर्टिफाइड ऑडिटर मतलब नहीं समझा नहीं. सर्टिफाइड ऑडिटर का डेफिनेशन क्या है? ऑडिट मतलब जीडीसी वाला ऑडिटर, ऑडिटर या सीए वगैरह. हाँ, तो कमिटी में क्यों नहीं आ सकता? उसमें कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है? वो खुद का सोसाइटी का ऑडिट नहीं कर पाएगा, खुद का सोसाइटी का ऑडिट नहीं कर पाएगा ना. अगेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है. Sixth point, if he is a salaried employee of any society or holds an office of profit under the society or not to if is a salaried employee of any society other than a society of employees themselves or holds any office of profit under the society. मतलब मैं मेरे सोसाइटी में मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय और वो सैलरीड एम्प्लॉयड होते हुए भी मैनेजिंग कमेटी में नहीं रह सकता. मेरा सोसाइटी में मैं एम्प्लॉय हूँ, मेंबर भी हूँ और एम्प्लॉय भी हूँ, तो मैं मैनेजिंग कमेटी में नहीं आ सकता बिकॉज मेरा एम्प्लॉय रिलेटेड जितने भी डिसीजंस है वो मैनेजिंग कमेटी अल्टीमेटली लेता है. So again there is a conflict of interest there. So you cannot become one. Next point, seventh is has more than 2 children. दो बच्चे से ज्यादा अगर उसके पास है तीसरा बच्चा तो भी वो कमेटी में नहीं आएगा. काम नहीं कर सकता. नहीं ऐसा काम तो कर रहा है ना वो, उसके लिए 3 बच्चा हुआ. हम नहीं कर सकते जैसा ठीक है. सिंपल है. यहाँ पे क्या हुआ 2001 में फैमिली प्लानिंग का इंडिया में हम दो हमारे दो फैमिली प्लानिंग इंट्रोड्यूस हुआ 2001 में. तभी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि जितने जितने फैमिलीज हैं वो 2 बच्चे ही पैदा करना चाहिए, क्योंकि हमारा देश का जो एक्सपेंडिचर है जो हम लोग
आपसे टैक्स को कलेक्ट करना है, बट जनरली जो हम लोग की तरफ से जो एक्सपेंडिचर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड मेंटेन करने में, ये वो वगैरह वगैरह जितने भी होता है वो ज़्यादा हो रहा है, तो हमको पॉपुलेशन लिमिट करना है। तो पॉपुलेशन लिमिट करने के हिसाब से उन्होंने बोला अगर आप तीसरा बच्चा करते हो मैं रोक तो नहीं सकता हूँ, बट जितना एडिशनल बेनिफिट्स में दे रहा हूँ वो तो मैं कर्टेल कर सकता हूँ, मैं आपका बेनिफिट्स नहीं दूंगा। हाउसिंग में कम्युनिटी में ऐसा बेनिफिट तो नहीं मिलता है, एक्चुअली बेनिफिट्स नहीं मिलते, वो काम करो, वो बेनिफिट वैसा नहीं, वो उसका पनिशमेंट है। पनिशमेंट ही है। हाँ, तो आप तीसरा बच्चा किया तो आप कमेटी में आने का एंटरटेनमेंट नहीं है आप। अगर आप ऐसा आप समझते हो कि कमेटी में आदमी जाने से पनिशमेंट है उसका, तो फिर ये रूल चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है ना, अभी आपने अपने विचार के ऊपर है। बहुत सारे सोसाइटीज बोलते हैं कमेटी में क्यों घूमना है, ये बड़ा पनिशमेंट है ना, तो उसके लिए लागू नहीं है फिर। तो ये मुद्दा ऐसा है कि गवर्नमेंट ने उस समय बोला था, तो ये जो है ना 7 सितंबर 2002 डेट कट ऑफ डेट है, वन है, बट एक साल रिलैक्स किया। क्यों रिलैक्स किया? 7 सितंबर 2001 में लोग बोला अरे ऑलरेडी मेरे पेट में बच्चा है, मेरे को कैसे डिस्क्वालीफाई करेगा, आज ही रूल तुम बनाया, कल बनाना चाहिए था मेरा बच्चा होने से पहले। वो तो ठीक है, एक साल तुमको एक साल में हो जाएगा ना बच्चा, हाँ हो जाएगा, तो एक साल रिलैक्स किया। तो इस वजह से वो ये हंसी मजाक है बट हकीकत भी है। तो जो लोग उस समय पे प्रेग्नेंट थे, जिसको नहीं मालूम था कल रूल आने वाला है, मैंने तो तीसरा बच्चा पैदा कर दिया, तो तुम्हारे लिए छूट दिया 1 साल और। तुम अभी 1 से लेके 2 में जो भी बच्चा हुआ उन लोग क्वालिफाइड, 2 के बाद जिसका बच्चा हुआ वो डिस्क्वालिफाइड। 1 साल का वो लिखा है, नीचे लिखेगा, देखो नीचे लिखा होगा, बढ़ से हमको समझेगा, बट ठीक है वो आपको नहीं चाहिए, उतना जरूरत नहीं है, एग्जाम में ऐसा इतना बड़ा लिखना नहीं है आपको। तो 2002 पकड़िए, 7 सितंबर 2002 के बाद में अगर थर्ड चाइल्ड बॉर्न है तो दैट पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू बी पार्ट ऑफ द कमिटी, एंड इफ ही इज पार्ट ऑफ द कमिटी ही विल बी डिस्क्वालिफाइड। मतलब आज भी अगर तीसरा बच्चा हुआ तो भी वो आज कमिटी में है, वो 2 बच्चे हैं ऑलरेडी उस पे, आज तीसरा बच्चा अगर होता है तो ही हैज टू वेकेट द सीट, ऑफिस जाना छोड़ के जाना पड़ेगा, ही कैन नॉट रिमेन इन द। हाँ, किसी को मालूम है किसी ने किया नहीं, सोसाइटी को मिलेगी, सोसाइटी को क्या पता, सोसाइटी क्या करेगा बेचारा? आज में पैसा मालूम पड़ जाएगा। हाँ, मालूम नहीं क्या, अब पता नहीं। अभी दूसरा सवाल मेरे को एक ऐसा ही एक लेक्चर में किसी ने पूछा, अभी एक बीवी के साथ होना चाहिए कि दूसरा बीवी के साथ होना चाहिए, अभी मैं क्या जवाब दूंगा उसको? वैलिड पॉइंट। हिंदू क्यों बोल रहे हैं, अगर वो मुसलमान रहेगा तो क्या करेगा? अलाउड है उसको। अभी एक बीवी के साथ में एक बच्चा है कि एक बीवी के साथ में 3 बच्चा, ये भी क्वेश्चन है। मेरा तो 3 बीवी है। हाँ, अभी मैंने उसको बोला, मैं बोला 3 सवाल का जवाब नहीं आना चाहिए, उसमें से एक क्वालिफाई हो गया। इसका क्या आंसर दूं? ऐसा कोई रूल तो लिखा नहीं है। तो एनीवे, तो अभी देखना पड़ेगा कि वो बच्चा किसके थ्रू होगा, तो दैट पर्सन विल बी डिस्क्वालिफाइड। नहीं समझे? बायोलॉजिकल फादर और मदर मतलब अगर मेन का बच्चा है 3, मतलब आदमी का 3 बच्चा है तो आदमी डिस्क्वालिफाइड, औरत का 3 बच्चा तो औरत डिस्क्वालिफाइड। दैट इज द आंसर। अभी क्लियर है? ये जल्दी समझ में आता है सब, तो अंदर का सेक्शन 78 79 पूरा याद ही नहीं है। हाँ, अडॉप्टेड इज आल्सो काउंटेड, ट्रिपलेट रहेगा तो नॉट काउंटेड। एक सिंगल डिलीवरी में 3 बच्चे भी हुआ तो उसको एक ही डिलीवरी माना जाएगा, उसका 4 रहेगा इसके हिसाब से। वो लिखा है, सब लिखा है नीचे, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सब लिखा है। अरे हम लोग फैमिली प्लानिंग के डिस्कशन में चले गए, लेट्स कम बैक टू एमसीएस। अभी देखो, अभी इतना समझ लो, 7 सितंबर 2002 के बाद तीसरा बच्चा नहीं होना, सिंपल। ठीक है, लेट्स प्रोसीड। We'll go to आपने जो अडॉप्शन का पूछा ना, अडॉप्शन में 2 टाइप के अडॉप्शन है। एक अडॉप्शन जहाँ पे विदाउट अडॉप्शन डीड,
अडॉप्ट करते हैं लोग, जैसे जनरल नॉर्मल अडॉप्शन, तो अडॉप्शन डीड के साथ अडॉप्ट करेगा तो इट इज कंसिडर्ड टू बी अ चाइल्ड ऑफ दैट पर्सन, तो उस समय पे थर्ड चाइल्ड ही माना जाएगा, क्योंकि परवरिश तो आप ही कर रहे हो ना उसमें। लिखा है, बट अडॉप्टेड चाइल्ड जनरल अडॉप्शन के हिसाब से अगर आप गोद लेते हो तो उसको नहीं गिना जाएगा, बट डीड के साथ करते हो तो उसको गिना जाएगा, वही मैं बोल रहा हूँ। नहीं, देने वाले का नहीं है, देने वाले का है। डीड बनता है देने वाले को लहू के साथ उसको तो 3 बच्चे होगा ना, वो तो डिस्क्वालिफाइड है ऑलरेडी। मैं अगर बच्चा होते जाएगा, मैं करते जाएगा और अडॉप्शन में देते जाएगा तो मैं कभी डिस्क्वालिफाई होगा ही नहीं, फिर ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल केस है इसकी। नहीं, प्रैक्टिकल होने दो, इम्प्रैक्टिकल होने दो, बच्चा 3 हुआ मतलब डिस्क्वालिफाइड। एडप्शन तो अच्छा कर रहा है ना, अच्छा ही काम कर रहा है ना। स्पीड ऑफ द लोग कहाँ है, हाँ, स्पीड ऑफ द लोग नहीं गलत तरीके से गलत तरीके से अडॉप्ट करने की बात नहीं करेगा है। तो अच्छा है ना। अभी आप क्या मालूम कि अच्छे तरीके से अडॉप्ट किया कि नहीं, वो अच्छा ऐसा जरूरी नहीं है ना, अडॉप्शन में सब अच्छा ही है। सर ये रूल सिर्फ थर्ड चाइल्ड के लिए ये डिस्करेज करते हैं, बाकी फोर्थ फिफ्थ को ऐसा कुछ नहीं है ना। मतलब इफ इट हैज टू बी डिस्करेज, फैमिली प्लानिंग है तो फोर्थ के लिए और कुछ ट्रिक्स मांगते हैं। ये तो अभी ऐसा हो गया कि वो इसमें कृष्ण का जो स्टोरी है उसमें बोलता था हमारा जो 8th बच्चा है उसको ही मारेगा, कंस क्या वो 8th बच्चे को ही मारेगा तुम्हारा, तो उसने छुपा दिया पीछे का 3-4 बच्चा बताया ही नहीं, तो बोलेगा मेरा 3rd बच्चा कभी हुआ ही नहीं, 2nd के बाद 4th ही हुआ। ऐसा नहीं होगा, 3rd 4th एक के लिए लागू है, मतलब मिनिमम क्राइटेरिया है ना वो। तो आप कैसा बोलेंगे कि 4-5 को अलाउ करना चाहिए? नहीं अलाउ मतलब स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होना चाहिए। थर्ड इज डिस्करेज, वो बोला कि थर्ड हो गया, नाउ मैं डिस्क्वालीफाई हो गया तो ही विल गो फॉर फोर्थ फिफ्थ चाइल्ड, तो दैट शुड बी स्टॉप। उसका और एमसीएस एक्ट का कोई संबंध नहीं है। आप जाओ किधर दूसरे जगह पे जाओ, आप सबको इसके अंदर लेके कैसे आओगे? एमसीएस एक्ट में इतना सारा चीज कहाँ से आएगा? ये गलती किया इन्होंने, ये मैं बोलने वाला हूँ, ये हटा दो इधर से, इतना डिस्कशन है चैप्टर में, पूरा दिन टाइम कम है। एक्चुअली कम्युनिटी में आते ही नहीं कोई। देखो वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट 2 सब 73CA सब क्लॉज 2, a member who has incurred any disqualification under any of the above sections shall cease to be a member of the committee and his seat shall thereof be deemed to be vacant, मतलब उसको भी सीट वेकेट करना पड़ेगा। A member of the committee who has ceased to be a member of account of any of the disqualifications shall not be eligible to for re-election, co-option, re-nomination of the until a period of 5 years from the date of seizure. जिस दिन से वो सीज हुआ उस दिन से 5 साल तक he cannot be re-elected. ये important point. So disqualification में if somebody is disqualified due to these factors, देखिए वो रिजाइन करके गया वो re-elect हो सकता है. Disqualification and resignation there are all different things. अगर किसी का कोई कारणवश 2 फ्लैट है सपोज फॉर एग्जांपल, उसने 1 फ्लैट बेच दिया उसका और उस फ्लैट का मेंबरशिप था, वो अभी दूसरा फ्लैट, अगर आप बोलोगे कि नहीं वो फ्लैट का मेंबरशिप आपसे नहीं है, वो फ्लैट का ओनर नहीं हो इसकी वजह से मेंबर नहीं हो, तो आप 5 साल के लिए नहीं कर सकते हो, दैट इज नॉट द क्राइटेरिया, यू हैव टू बी डिस्क्वालिफाइड बिकॉज ऑफ एनी ऑफ दीस वायलेशंस, अदरवाइज यू कैन कंटेस्ट, उसमें 5 साल का वो सजा नहीं है। अभी वो सजा है या नहीं है वो आप बताएंगे, वो बोलेगा अच्छा है मैं 5 साल के लिए कमेटी में मेरे को कोई बुलाएगा भी नहीं, ऐसा बोलते हैं लोग, एक्चुअली ऐसा बोलता है वो रजिस्ट्रार के पास बोलता मेरे को 1 टर्म के लिए नहीं, अब मेरे को 2 टर्म के लिए बैन करो, 10 साल के लिए मैं इलेक्शन में कंटेस्ट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि क्या है वो सोसाइटी में 20-22 लोग हैं और जबरदस्ती इसको ही कंटेस्ट करना पड़ता, जबरदस्ती इसको खड़ा कर, बोलता है मेरे को डिस्क्वालीफाई करो, कोई तो 4 में से किसी तो एक के अंदर डिस्क्वालीफाई करो, तो उसने क्या किया ब्रोकर बन के एक उसका एक फ्लैट बिल्डिंग का एक फ्लैट बेच दिया और उसका दोस्त को बोला कंप्लेंट कर, डिस्क्वालीफाई कर दिया, वो रजिस्ट्रार को बोला 1 साल के लिए 1 टर्म के लिए नहीं 2 टर्म के लिए डिस्क्वालीफाई करो, ये हकीकत है, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, ये एक्चुअल स्टोरी है। अभी कोई मिडिल ऑफ द टर्म डिस्क्वालीफाइड होता है तो 3 वहां से 5 साल गिना जाएगा, वहां से 5 साल फ्रॉम द डे ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन,
लेकिन सर वो 5 साल जो अप्लीकेबल है 3 चिल्ड्रन रहेगा तो वो तो कंटिन्यू रहता है 5 साल हाँ मतलब वो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट है ना, 3 चिल्ड्रन को 7वां पॉइंट है, बट बाकी 6 तो इंडिविजुअल पॉइंट्स है ना. A member of the committee, 4th point, who has ceased to be a member thereof on account of any of the disqualifications other than the disqualification referred in subsection 3 shall, unless otherwise specifically provided in side, be eligible to be renominated. 3 के हिसाब से अगर disqualify 5 साल के लिए अगर नहीं हुआ, for example, then he can be re-elected. वो क्या है, क्यों? क्योंकि वो रजिस्ट्रार का ऑर्डर अल्टीमेटली it has to be declared by the registrar that he has been disqualified for 5 years. If he is not declared, then he is entitled for re-election, even within 3 years, even within 5 years. We'll move ahead. (73F) 73F मिला? आपके इसमें केस लॉ भी है क्या बीच में? नहीं ना? सीधा सीधा सेक्शन सी आता है. If a person is elected, election to more than one seat. तो मैंने जो बोल दिया already है. The person is elected to more than one seat, unless within a period of 15 days from the date of declaration, he resigns all but one of the seats. तो जितना भी seats में वो है, बाकी का seats resign करके एक seat वो retain कर सकते हैं. This you can write constitution of committee और constitution of committee में आप लिखो ये वाला point. Committee constitution के टाइम पे 30 days है. 15 डेज लिखा है. एक्चुअली वो 15 डेज ही होना चाहिए. मैं बोलता हूँ क्यों 15 डेज इसके लिए होना चाहिए क्योंकि आपका रिटर्निंग ऑफिसर जो रजिस्ट्रार को लेटर देता है कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करो करके, वो 15 डेज का ही नोटिस है, 30 डेज का नोटिस नहीं है. तो अगर 30 डेज आप दोगे और 15 डेज में कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कैसा करेगा? नहीं कर पाएगा ना. तो यू राइट इट एज 15 डेज ओनली. तो एक मिनट इधर वो क्या कहता हूँ. तो he has to resign all other seats and एक सीट वो रिटेन कर सकता है. अगर फिर भी उसको एक सीट भी नहीं रिटेन करना है तो बाकी सब पूरा का पूरा भी रिजाइन हो सकता है उस समय पे, उसकी जो मर्जी. he can resign all the seats. कहीं पर नहीं लिखा, जबरदस्ती नहीं है ना. मैं कुछ दिन सोचा था कंटेस्ट करने का, आज लग रहा है मेरे को कमेटी में रहना. I can resign all the seats. 73I, responsibility of committee or the administrators or authorized officer to intimate and assist to arrange for elections before expiry of term. अभी as provided under section 14 of section 73CB, it shall be the duty of the committee to intimate the state cooperative election authority for holding the elections before the expiry of its term. अभी responsibility किसका है? कमेटी का. अपना इलेक्शन का टर्म कितना है? 5 years. तो 5 years के पहले अगर आपका 250 से ऊपर वाला सोसाइटी है तो आपका 6 months के पहले इंटीमेट करना. You can write this point. If your society is falling under there, अगर आपका हाउसिंग सोसाइटी के बारे में मैं बोल रहा हूँ, आपको एग्जांपल देते समय मैंने जैसा आपको हर समय बोला, एक तो हाउसिंग सोसाइटी का एग्जांपल आप दे दो ताकि आपको आंसर थोड़ा समझेगा भी, सामने वाले को भी थोड़ा एग्जांपल के हिसाब से आप समझा पाओ. तो 250 के ऊपर वाला सोसाइटी में आपको 6 months का इलेक्शन का टोटल टेन्योर स्टार्ट से एंड तक. तो आपको 4.5 years खत्म होने के बाद में रजिस्ट्रार को बता दें about more than 250 that those societies are called as C category societies. C category societies में आपको 6 months का इलेक्शन रूल्स के हिसाब से 6 महीना लगता है एंटायर प्रोसेस आपका इलेक्शन का खत्म करने. In those societies you have to intimate the registrar 6 months prior to expiry of, मतलब 4.5 years में आपको देना. और E कैटेगरी सोसाइटीज में जहाँ पे 250 तक का मेंबर्स है वहाँ पे 2 months का इलेक्शन प्रोग्राम है और वहाँ पे आप 2 months के पहले रजिस्ट्रार को इंटीमेट कर सकते हैं. हाँ सी ई में 2 months, C में 6 months. Where there is a willful failure on the part of the committee to intimate for holding the election for a reason whatsoever,
election of the members of the committee could not be taken before the expiry thereafter shall cease to hold their office, and in such a situation the registrar shall take action as contemplated under section 77A. 77A में क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑथराइज्ड ऑफिसर्स है, एडमिनिस्ट्रेटर्स जो बोलता है वो 77A के अंदर आता है। जानबूझ के बिल्कुल ही आपने बताया नहीं और आपने इलेक्शंस कंडक्ट नहीं किया, आपका पहले हमने एक प्रोविजन में देखा था कि अगर वो कहा फर्स्ट प्रोविजनल कमेटी, याद है आपको? प्रोविजनल कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे 1 साल का टेन्योर था। रिमेंबर वो कौन सा सेक्शन था प्रोविजनल कमेटी? अभी सवेरे किया तो 73AAA कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी इसमें था 33AAA। 33AAA में क्या बोला कि अगर फॉर व्हाट एवर अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस आपका अगर लेट होता है तो भी आप 1 साल के ऊपर प्रोविजनल कमेटी एक्सटेंड नहीं कर सकते हो। आपको 1 साल के अंदर ही आपको उसके अंदर करना है। आप विलफुली अगर नहीं करते हो, एक्सटेंड करते हो और आपका टेन्योर बढ़ाते हो, वहाँ पे 1 साल यहाँ पे 5 साल, तो देन 77A के अंदर द रजिस्ट्रार कैन टेक एक्शन, कैन अपॉइंट ऑथराइज्ड ऑफिसर टू मैनेजमेंट टू टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द मतलब कोई ऐसा कोई कोविड आ गया, हम नहीं कर पाए, या फ्लड्स आ गया, कुछ हो गया ऐसा, हमको अर्थक्वेक आ गया, एकदम फोर्स मेजर बोलता है, फोर्स मेजर अगर सब पोस्टपोन करने का रहेगा तो क्या है? पोस्टपोन कर ही नहीं सकता, तो उसको करते हैं गाइडलाइन क्या है? तो रजिस्टर आ जाएगा ना, नहीं किया इसके लिए ये सेक्शन है। आप जानबूझ के करो या कुछ रीजन बराबर से मत दो, अगर आप सेटिस्फाई नहीं करो रजिस्टर को तो एडमिनिस्ट्रेटर आएगा 100% आएगा, प्रोविजन है। बट इतना सारा लोग कहाँ नहीं जा पाते हैं तो कभी कोई बहुत सारा सोसाइटीज बच जाता है, सब जगह एडमिनिस्ट्रेटर नहीं आता, बट प्रोविजन है। हमको तो एक्ट के हिसाब से पढ़ना है ना। 77A on taking such action the authorized officer so appointed for holding the election and immediately effect and assist take necessary actions for holding election। जो authorized officer जो है और एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसका मेन काम क्या है? 2 काम है उसके। एक तो जब तक वो है उसको भी 6 मंथ्स के अंदर ही इलेक्शन करना है, क्योंकि हमको तो बताया गया मैक्सिमम टेन्योर 6 मंथ्स है। कमेटी ने 6 मंथ्स के पहले नहीं किया, इसकी वजह से कमेटी को हटाया। अभी ऑथराइज्ड ऑफिसर भी आके सेम गलती नहीं कर सकता है, उसको भी 6 मंथ्स में ही करना है आने के बाद में। 6 मंथ्स में 2 काम है। एक काम क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ द ऑथराइज्ड ऑफिसर? 1 to manage the day-to-day affairs of the society and second to hold election। इसके सिवा और कुछ उसका काम नहीं है। हम लोग बोलते हैं ना कि एडमिनिस्ट्रेटर आके बैठ गया, पूरा सोसाइटी का पैसा निकाल लिया, 2-2 साल से जा नहीं रहा है, ये सब एक्चुअली गलत है। लेकिन सर होता है नहीं, ये सब होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, होता है, नहीं होता नहीं, बट यू हैव आल्सो नॉट टेकन अप्रोप्रिएट एक्शन। क्या एक्शन? यू हैव टू गो टू द रजिस्ट्रार एंड अप्रोच हिम टू डायरेक्ट 6 महीने में हमको इलेक्शन करना है एक्ट के हिसाब से। एक्ट का प्रोविजन आपने बताया क्या रजिस्ट्रार को? नहीं बताया। सैटिस्फाई करना तो बात की बात है, बट पहले एक्ट का प्रोविजन तो बताओ, सिखाओ ना। आप इसके लिए बैठे हैं ना, सिखाओ रजिस्ट्रार को, बोलो 6 मंथ्स का ही टाइम है आपको करने का, आपने नहीं किया। और 77A में जब आएंगे तो और भी एक चीज मैं बताऊंगा इसका क्या हो सकता है। तो आप डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटर बिठा है तो ठीक है, बिठाने दो, क्योंकि आपका भी गलती है उसमें कि आपने बराबर से बायलॉज या एक्ट को फॉलो नहीं किया, इसके वजह से आया ना रजिस्टर। तो बट आया तो किस चीज के लिए आया, उतना ही काम करना चाहिए। वो तो आप इंश्योर कर सकते हो, आप भी नहीं कर रहे हो, वो भी नहीं कर रहा है, या फिर आपके अंदर के कोई लोग उसको असिस्ट कर रहे हैं, इसके लिए वो बैठा है उधर। वी डोंट नो, so you have to quote this section and move forward। नहीं वापस लो, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। वो में हम लोग 77A में जाता है ना, क्या है, सिर्फ कम्युनिटी डिसॉल्व होने से ही रजिस्ट्रार नहीं आएगा, ये वन ऑफ द रीजंस, क्योंकि हम लोग वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट पे है ना, वो पर्टिकुलर क्लॉज के अंदर या
पीछे और दूसरा क्लॉज ऑडिट इंक्वायरी में आएगा ना, दूसरा बाद में आएगा। क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर, सेक्रेटरी एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ सोसाइटी एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड फाइनेंशियल ऑफिसर्स ऑफ सर्टेन सोसाइटी, ये आपको उतना नहीं चाहिए, इसको आप ध्यान में रखो। 74 75 इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आता ही है, ये भी मेरे ख्याल से 5 या 6 बार आया है। एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग 75 Annual general body meeting shall within a period of 4 months from the close of financial year shall get its books audited. 4 months मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 31 जुलाई आपको अकाउंट कराना है, and 6 months before the after the close of the financial year the annual general body meeting आपको बुलाना है। 6 months मतलब 30th September 30th। Provided that register may in exceptional circumstances such as infectious disease, pandemic, flood, heavy rains, drought, earthquake, आपने पूछा ना unavoidable क्या है, ये सभी है। Unforeseen यही है। General or special order extend the above referred period not exceeding 3 months। अभी ये जो clause है ये अभी इन्होंने डाला है 24 और 25 के एडिशन में। ये पैंडेमिक पहले था नहीं, आप पहले के इसमें देखोगे तो था ही नहीं, ये अभी आया है, कोरोना आने के बाद में आया। बट टेक्निकली अगर आप देखोगे तो रजिस्ट्रार के पास भी पावर नहीं है आपको एक्सटेंशन देने। ये जो 30 सितंबर का एक्सटेंशन है, पहले 2013 के पहले रजिस्ट्रार के पास आप एप्लीकेशन डाल के एक्सटेंशन ले सकते, बट 2013 के बाद में जो अमेंड हुआ एक्ट, उसके बाद में रजिस्ट्रार के पास भी अथॉरिटी नहीं है आपको एक्सटेंशन देने का, ओनली इन वेरी 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 रिमोट पॉसिबिलिटीज। फॉर एग्जांपल 2 साल पहले महाराष्ट्र के रूरल एरियाज में बहुत फ्लड हो गया, जहाँ पे लोग घर से बाहर सब बहुत सारा डूब गया था। तो उस समय पे उन लोग कर ही नहीं पा रहे थे इलेक्शन, क्या कुछ भी नहीं कर पा रहे, कमेटी छोड़ो, इलेक्शन छोड़ो, घर से बाहर निकलने का तो हालत खराब था। तो 30 सितंबर बारिश का ही टाइम है ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो उस अगस्त में सब वो लोग ना ऑडिट कर पाए ना कुछ कर पाए, सब ऐसे ही पड़ा था। तो उस समय पे भी क्या हुआ, उस समय पे भी वो लोग कोर्ट में गए, कोर्ट में जाके कोर्ट ने ऑर्डर दिया, वहाँ पे हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, बोला कि हाँ ऐसा एक सिचुएशन है जहाँ पे अनफोर्सीन है, ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से स्पेसिफिकली जो सोसाइटीज अफेक्टेड है वो एरिया में, वो जो कैटेगरी में फॉल होता है, उन लोगों को आप एक्सटेंशन दे दो 3 महीने, ऐसा बोल के 3 महीने का एक्सटेंशन दिया था 2 साल पहले। तो इट कैन हैपन ओनली इन सच सर्कमस्टेंसेस, द रजिस्ट्रार अपने आप से अपने मर्जी से एक्सटेंशन नहीं दे सकते। Books of accounts should be audited within 9 months from the close of the financial year, and the annual general body has to be called within 12 months from the close of financial year। एक साल के लिए इन्होंने 2019-2020 के लिए अलाउ किया था, ये जरूरत नहीं है क्योंकि वो कोविड की वजह से अलाउ किया था कि उस साल में 1920 का मार्च 20 को खत्म हुआ ना, और अप्रैल से कोविड आया, तो इमीडिएटली ऑडिट नहीं कर पाए, इसकी वजह से उनको एक्सटेंड करके 9 मंथ्स और 1 ईयर दिया। तो बाद में फिर भी एक्सटेंड किया, उसको 2-3 बार एक्सटेंड किया गया है, तो उस वाले को छोड़ दो, ये वाला पैराग्राफ हमारे लिए नहीं है। बट अब इतना ही समझो, 4 महीने में ऑडिट खत्म करना है, 6 महीने में एजेंट करना है, और 7 महीने के अंदर वो भी लिख लो, 7 महीने के अंदर आपको ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट भी फाइल करना। 7 महीना मतलब अक्टूबर 31। 3 months from the date of finalization of the account आपको ऑडिट रेक्टिफिकेशन करना है। आपका अकाउंट फाइनलाइज कभी हुआ, ऑडिट कभी हुआ, 31 जुलाई, उसका 3 महीना कभी हुआ, अगस्त 31 अगस्त। तो फ्रॉम 7 months 3 months 7 months नहीं दिया है, फ्रॉम अप्रैल 7 months नहीं दिया, फ्रॉम मार्च 7 months ऐसा नहीं दिया, 3 months from the date of ऑडिट, फाइनलाइजेशन ऑफ ऑडिट्स, आपको ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट फाइल करना है। तो डिस्कशन कहाँ होगा, वो आपके एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में होगा। इसके लिए मैं ये रेफरेंस के हिसाब से दे रहा हूँ, आप जो भी आपका ऑडिट रिपोर्ट है वो आपके एनुअल जनरल बॉडी में डिस्कस होगा। एनुअल जनरल बॉडी में डिस्कस होने के बाद कोई पॉइंट्स स्पेशल रिपोर्ट में आपके पास आएंगे कि आपने बिल्डिंग का इंश्योरेंस नहीं किया फॉर एग्जाम्पल, या आपने ट्रेनिंग एंड एजुकेशन नहीं किया, तो ये सब ऑडिट पॉइंट्स है। ये ऑडिट पॉइंट्स को आपको रेक्टिफाई करना है, तो कैसा करोगे, ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट के हिसाब से।
वो ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट आपका 31 अक्टूबर के पहले फाइल होगा। October 3 months from the completion of the date of the audit। मतलब वो जो देखिए within करके बोल रहे हैं within, तो मतलब you take the last date, you can take the last date ले सकते। From the date and within the date में फर्क है। From the date मतलब जिस दिन ऑडिट खत्म हो उस दिन से 4 महीने, within मतलब लास्ट डेट जो खत्म होता है ऑडिट का 31 जुलाई आपको टाइम दिया था उससे 3 महीने। After that, audit होने के बाद after rectification we have to give to the registrar. आफ्टर हाँ रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट भी सबमिट करना है रजिस्टर, वही 31 अक्टूबर के पहले। वो 31 October we have to submit it to the registrar. सितंबर में आपका जो भी डिसीजन लोगे आप एनुअल जनरल बॉडी में, वही डिसीजन को ही ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट में लेके आना और सबमिट करना है ना। 1 महीना टाइम है आपके पास। 31 October तक के पहले करना है कि 31 October के बाद रजिस्टर के पास जाना है? 31 अक्टूबर के पहले करना, बाद में पहले। तो 1 month आप बोले तो 1 month rectification करने के लिए सितंबर का आपका एजीएम है ना सर, AGM के बाद एजीएम के बाद 1 महीना है ना आपके पास, वो बोला 30 सितंबर एजीएम है ना, 31 अक्टूबर ऑडिट रेक्टिफिकेशन है, 1 मंथ के अंदर करना है ऐसा बोला। तो फ्रॉम और विदिन में आप मुझे डिफरेंस कर रहा है हाँ फ्रॉम विदिन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट 3 मंथ्स, फ्रॉम द डेट 3 मंथ मतलब आज अगर सपोज आज वी आर ऑन 16 मार्च, 3 मंथ्स फ्रॉम 16th मार्च, मतलब आज से गिनना शुरू हो जाए। बट आपको एक पर्टिकुलर डेट दिया है कि आप 31 मार्च तक आपका इनकम टैक्स रिटर्न भरो एंड विदिन 3 मंथ्स आप आपका रेक्टिफिकेशन भरो। तो द विदिन मतलब इट विल स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ ड्यू डेट से ही आपका शुरू होगा। नाउ पॉइंट नंबर 2 which is also very important, आपको अभी जनरल बॉडी मीटिंग के बारे में समझ गया। ये शुरू का पॉइंट्स क्या लिखते हैं, जनरल बॉडी मीटिंग क्या है, व्हाट इज मेंट बाय जनरल बॉडी मीटिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल मीटिंग ऑफ all the members of the society. एंड व्हाट इज मेंट बाय एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग? Annually. हाँ? Annually. Annually. हाँ, we will take an annual. So you have to write starting शुरू में आपको ऐसे लिखना है, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग के बारे में शॉर्ट नोट्स है। As the name itself suggests, this general body meeting can be held only once in a year. It is meant annually, so it has to be conducted mandatorily once in every year. क्योंकि एसजीएम वगैरह के लिए ऐसा टाइम नहीं दिया, आगे जाएंगे तो दिखेगा 76 एसजीएम, 75 एजीएम, तो उसमें ये लिखा स्टार्टिंग में। उसके बाद में आप लिखेंगे क्या, कौन से दिन के अंदर करना है। एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग हैज टू बी कंडक्टेड within 6 months from the date of Closing of financial year. फाइनेंशियल ईयर एंड उसके साथ में लगा हुआ एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग का ये ऑडिट का पॉइंट और ये अकाउंट्स का पॉइंट इसमें क्यों बताया गया है, क्योंकि ऑडिट और अकाउंट्स का पॉइंट मेन एजेंडा होता है एजीएम का, और एजीएम में ही आप ये डिस्कस कर सकते हो। इसके लिए आप स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग नहीं ले सकते, वो भी आप पॉइंट लिखो कि द एजेंडा रिगार्डिंग फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, अप्रूवल ऑफ all the financials, approval of the audit report has to be done in this particular annual general body meeting, and the audit has to be conducted within 4 months of the completion of the financial year, and the audit rectification report has to be completed within 3 months from the date of the completion of the audit. समझ गया? ये पॉइंट लिखोगे, 1 पेज हो गया आपका, पीछे का पॉइंट्स देखो। So what is it? Also about that audit What is certified fine या तो 77A applicable हो जाएगा, रजिस्टर आने का पॉसिबिलिटी है। और 77A यही 75 इसमें है, 75 में पीछे सबसेक्शन 5 में आएगा। कितना तक क्लियर है?
sir, audited statement of the last AGM can be open in this AGM. ओपन मतलब Means to be देखिए, अब जब भी आप एजीएम शुरू करते हो और एक पॉइंट अभी आएगा इसका, आप थोड़ा रुको, अभी आएगा नेक्स्ट पॉइंट वही आएगा। 35(1) पढ़ा हमने, 75(2) पढ़ेंगे, उसमें आएगा। अभी एजीएम का बारे में लिख दिया शुरू का पॉइंट्स। अभी एजीएम का क्या क्या होना चाहिए एजेंडा, वो है 75(2) में, व्हिच इज आल्सो मेंशन्ड इन बायलॉ 95। आपका हमारा इसमें क्या बोलता है उसको, हाउसिंग सोसाइटी का बायलॉस में उसमें लिखा है। क्या हुआ, क्या लिखा है उसमें? Every cooperative store either comes 45 days. 45 days from cooperative year. क्या करना चाहिए 45 days में? नहीं, इसको थोड़ा साइड में रखो। नहीं, ये क्या है ना, ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। देखिए, वो बोलते हैं कि आपको 4 महीने के अंदर आपको ऑडिट खत्म करना, दैट इज द स्टैट्यूटरी ऑडिट, दैट इज द स्टैट्यूटरी ऑडिट। बट आपका ऑडिटर के पास आपको अकाउंट्स वगैरह सबमिट करना है, जो आपका अनऑडिटेड वाला फाइनेंसेस है उसको आपको 45 डेज में करना है। वो बोलता है सोसाइटी 45 डेज में इंटरनल ऑडिट कर लो, और इंटरनल ऑडिट करने के बाद में आप ऑडिटर के पास दो, जो उसको फिर बाकी के टाइम में 2.5 मंथ्स में उतर के 4 महीने में कंप्लीट कर। फाइनल ये डिसिप्लिन के हिसाब से ये भी लिख सकते हो। यू राइट अ पॉइंट, दिस आल्सो फर्स्ट पॉइंट आप ये लिखो अकाउंट्स में, within 45 days the society has to complete its internal audit and submit the unaudited accounts financials to the statutory auditor, who in turn has to complete the audit within 4 months from the completion of the financial year. ये लिखो, ये चलेगा। इंटरनल ऑडिट का कंपल्सरी नहीं है। इसलिए नहीं है, बट कुछ तो आप देंगे ना, क्या देंगे उसको? ऑडिट मतलब ऑडिटर बैठ के ही करने वाले को नॉट नेसेसरी उसी को ऑडिट बोला जाता है। वो पेपर कंपाइल करके जो आप देते हो उसको, दैट इज आल्सो ऑडिट। आप जितना भी वाउचर उसको दोगे ना ऑडिटर, वो तो आपके अंदर आके ढूंढ के तो नहीं लेगा, पेपर सेट तो देना पड़ेगा ना उसको। वो आप 45 डेज के अंदर करो, उसके बाद वो फिर 2.5 महीना और लेगा, फिर 3 महीने में आप मीटिंग करो, और उसके 1 महीने के बाद सर्टिफिकेशन फाइल। यह प्रोसीजर है पेपर वाइज। नाउ वी विल कम टू द एजेंडा। एजेंडा क्या बोलता है? एवरी एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ सोसाइटी द कमिटी शैल, मतलब कंपल्सरीली एजेंडा हर समय आपको रखना है। शैल लेड द फॉलोइंग एजेंडा। फर्स्ट एजेंडा क्या है? स्टेटमेंट शोइंग द डिटेल्स ऑफ लोन्स मेंबर्स ऑफ द कमिटी और एनी मेंबर ऑफ द फैमिली और एनी कमिटी मेंबर इंक्लूडिंग सोसाइटी फॉर्म। जितना भी लोन जिन्होंने भी जो लिया है सोसाइटी से, वो सबसे पहला एजेंडा है। इसमें सबसे पहला एजेंडा है एनुअल अपना मॉडल बायलॉस में देखोगे तो वो पहला एजेंडा ये नहीं है, बट ये जनरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए है, जहाँ पे लोन्स काफी चलता है बाकी केस में, और सोसाइटी का एक वो लायबिलिटी है। लायबिलिटी मतलब एक्चुअली है एसेट, बट पैसा अगर किसी को आपने दिया है वो एसेट भले गिना जाएगा, बट फिर भी वो पैसा जब तक नहीं आएगा तब तक वो लायबिलिटी है सोसाइटी की। इसके लिए उसका पूरा रिकॉर्ड आपको मालूम होना चाहिए कि किस किस को लोन दिया है। इसके वजह से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऊपर लाया है, क्योंकि वो देखिए ये जो लोन दिया जाता है ये ज़्यादातर सोसाइटी के हिसाब से बहुत लीनियंटली लोन दिया जाता है। इसमें ऐसा कोई बैंक जैसा देता है वैसा नहीं रहता, अंदर के अंदर का हमारा अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लोन दिया जाता है। उसका डिफॉल्ट होने का चांसेस बहुत है, नहीं भरने का चांसेस बहुत है, पे ऑफ करने का चांसेस बहुत है, कोर्ट में जाके या इधर उधर जाके इसको जीरो करने का चांसेस बहुत है। इसके लिए हर समय हर एक आदमी को मालूम होना चाहिए कि कितने कितने लोगों को सोसाइटी ने लोन दिया है, ताकि बाद में कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए इसके ऊपर। तो एनुअल जनरल बॉडी का फर्स्ट एजेंडा ये है। एनुअल रिपोर्ट ऑफ इट्स एक्टिविटीज, क्या क्या करती है सोसाइटी, दैट इज द सेकंड एजेंडा। प्लान फॉर डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, अगर सरप्लस आपका बनता है तो कैसा उसको किधर किधर डालना चाहिए, हमने पढ़ा अभी कैसा फंड्स को अलोकेट करना चाहिए, वो अलोकेशन का ये बजटिंग। सरप्लस का डिस्पोजल करना मतलब बजटिंग, क्या क्या किधर किधर कौन से पैसे थ्रू आउट द ईयर हम लोग कहाँ लगाएंगे। लिस्ट ऑफ अमेंडमेंट्स ऑफ द बायलॉस इफ एनी, अगर बायलॉ में आपको कुछ अमेंडमेंट करना है और रजिस्ट्रार के पास अप्रूवल लेना है, दैट इज वन एजेंडा। डिक्लेरेशन रिगार्डिंग डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, अगर आपका इलेक्शंस अगले एजीएम के पहले आने वाला है, 5 साल कंप्लीट होने वाला है आपका सोसाइटी का, तो ये साल का एजीएम में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इलेक्शंस कंडक्ट करके कभी हम लोग लिख रहा है,
कितना दिन में कंप्लीट हो रहा है, रजिस्ट्रार को कब बताना पड़ेगा या रिटर्निंग ऑफिसर को अपॉइंट करना है कब करना पड़ेगा, वो सब डिसाइड करना। ऑडिट रिपोर्ट आपका है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, आपका जवाब मिल गया सर, ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो ऑडिट रिपोर्ट में पहले साल का ही करेंगे ना, ये साल को तो अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी जो किया है हम लोग पिछले साल का जो ऑडिट रिपोर्ट है वही ये साल में करता है ना। उसके पीछे का अगर कुछ होगा तो वो ओपन कर सकता है क्या? ऐसा ओपन करें, क्योंकि देखिए कभी भी आप एक एजीएम करते हो उसका पॉइंट क्या है कि जितना भी पीछे वाला है उसको पहला रीड करके उसको कंफर्म करते हो, बाद में आगे बढ़ते हो। अगर वो ऑडिट में कुछ गलती मिलती है तो तभी पॉइंट आउट करना चाहिए था ना। अगर मिस हो गया नहीं मिस हो, ओ एंड ए पर लिखते वो गलती है। रहो वो फिर वो आप इससे मत जाओ, फिर आप रजिस्टर को कंप्लेंट करो, जनरल बॉडी को मत रुकाओ उसके वजह से। अच्छा, वी हैव टू राइट टू रजिस्टर, यू हैव टू राइट टू रजिस्टर, क्योंकि आपका भी गलती है ना, आपको लास्ट ईयर देखना चाहिए था, आपने नहीं देखा, आप भी सो रहे थे ना। अगर समझ लो कि अगर अपन जब कमिटी में आते हैं और पता चलता है कि पुराने कमिटी में ये सब आप बताओ, किसी ने जो भी आप- कर आप- दिया, ओवरराइड कर दिया, अकाउंट को कर दिया सब। आप रजिस्टर को अप्रोच करो ना, वो पीछे के इसमें आएगा, ऑडिट इंक्वायरी उस वाले सेक्शन में आएगा, तभी आप लोग देखता है। बट एज फार एज जनरल बॉडी इज कंसर्न, एक बार आपने अप्रूव करके क्लोज कर दिया और मिनट्स एजेंडा पास कर दिया, मिनट्स लिख दिया, रेजोल्यूशन पास हो गया, somebody has proposed, somebody has seconded, the matter is closed, then you cannot again and again same point को आप लेके नहीं आ सकते। आप ऑब्जेक्शन ले सकते थे तभी भी, गए साल का एजीएम में आप ऑब्जेक्ट कर सकते थे ना, ये मेरे से मान्य नहीं है करके, इसके लिए मैंने अप्रूव नहीं किया। सेम मैटर में ऐसी एक इशू है कि अभी तक वो टाइम में मतलब डिसीजन लिया हुआ है, तो उसमें कोई रिजॉल्व नहीं हुआ। देखिए ऑब्जेक्शन लिया रिजॉल्व नहीं हो तो रजिस्टर है ना, रजिस्टर के पास जाइए, कोई भी ऑब्जेक्शन। देखिए उधर इंस्पेक्शन वाला हम लोगों ने तो पढ़ा ही था पॉकेट सेक्शन सर 154P8, यस, और दूसरा सेक्शन क्या था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सी बुक्स। सी बुक्स किधर था, कौन सा सेक्शन था, भूल गया। सी बुक एंड टेल, सी बुक एंड नाउ टेल, कौन सा सेक्शन था इसके पहले, 32 क्या पढ़ो बराबर। तो सी बुक में क्या था, आपको देखने के लिए तो अलाउड है ना, आप जनरल बॉडी में क्यों जाके उसको इशू रेस करते हो, आप उसके पहले ही बोलो मेरे को देखने का पिछला वाला बुक। अभी तो आप कमेटी में आ गए, आपको तो बुक दिख रहा है सामने, आप देखा आपने, अगर आपको कुछ मिस अगर कुछ लगा तो आप रजिस्टर को कंप्लेंट करो, डोंट मतलब जनरल बॉडी को तकलीफ मत दो, बोलने का मतलब है मीटिंग शुड रन स्मूथली। वो डाल के आप मीटिंग को रुका दोगे, जनरल बॉडी नहीं होगा, फिर मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। जनरल बॉडी को आपको पोस्टपोनमेंट भी नहीं है, मतलब बियॉन्ड 30 सितंबर पोस्टपोनमेंट नहीं है, और नॉर्मली सब सोसाइटीज वो 25 और 30 के बीच में ही लेता है जनरल बॉडी। हाउसिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, बाकी तो लोग एक 2 महीना पहले लेते हैं। तो इसका उसका वो एजेंडा अलग है, मेरा बोलने का मतलब वो एजेंडा अलग है। एनुअल बजटिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर, ये सब आपको याद रहना पड़ेगा। एनुअल जनरल बॉडी लिखना है तो एटलीस्ट 8-10 पॉइंट में से 5-6 तो लिखना पड़ेगा। ये एजेंडा का आइटम्स आपको एजीएम का लिखना पड़ेगा, आप याद रखो। जनरल पॉइंट्स है, इसमें ऐसे कोई बड़ा पॉइंट नहीं है। जनरली जो हमारे सोसाइटी में होता है ना, वही आप जनरल इसमें लिख सकते हो, क्योंकि ज़्यादा फर्क नहीं है हाउसिंग सोसाइटी का और एजेंडा में, ज़्यादा फर्क नहीं है। आप 95 बाइलॉ भी देखोगे, ऑलमोस्ट सेम पॉइंट्स कवर्ड है। आप मॉडल बाइलॉ आप देखोगे तो यही पॉइंट्स कवर्ड है। एनी अदर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द रजिस्ट्रार इन परस्यूएंस ऑफ द एक्ट, अगर कोई नोटिसेस वगैरह कोई किधर से भी आता है, कोई अथॉरिटी से, उसको प्लेस करना है और उसका इन्फॉर्मेशन देना है। और such other business can be transacted as per the bylaws with due notice has to be given। मतलब आप जो भी एजेंडा एनुअल जनरल बॉडी में ही ले सकते हो। देयर आर सम स्पेसिफिक एजेंडास व्हिच यू कैन टेक अप ओनली इन द एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग, वो bylaws में लिखा रहेगा। दोस एजेंडास हैव टू बी टेकन, यू कैन नॉट से दैट मैं अभी नहीं लूंगा, क्योंकि वो पार्ट ऑफ द एजेंडा आपका नहीं होगा। उस समय पे आप ले सकते हो आके, या एनीथिंग विद द परमिशन ऑफ द चेयर वाला जो लास्ट पॉइंट रहता है, विद द परमिशन ऑफ द चेयर। अगर आपको कोई एजेंडा लेना है तो वो भी आप ले सकते हो।
So these are the points which have to be compulsorily taken up in a AGM agenda. Now come to 2A. Every society shall appoint an auditor or auditing firm from a panel approved by the state government in this behalf in its annual general body meeting, having such minimum qualification and experience as laid down in section 81 for the current financial year, and shall also file in the form of return to the register the name of the auditor appointed and his written consent for auditing the accounts of the society within a period of 30 days from the date of annual general body meeting. ये आपका ऑडिट रेक्टिफिकेशन के साथ साथ में आपका ऑडिटर अपॉइंटमेंट का भी 30 डेज के अंदर जाना है रजिस्ट्रार के पास। कौन सा साल का ऑडिट करेगा वो? लास्ट ईयर का ऑडिट तो अभी आप एजीएम में डिस्कस कर रहे हो। ये साल का अभी जो होने वाला है, मतलब हम सितंबर में है, 2024 का सितंबर में आप 2024-25 का जो ऑडिट करने वाला है, जो 2025 का मार्च के बाद शुरू होगा, बराबर है, उस वाला ऑडिटर अभी आप अपॉइंट। और इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, provided that the same auditor shall not be appointed for more than 3 consecutive years by the general body of the society। मतलब एनुअल जनरल बॉडी में जो एक एजेंडा था, क्या था एजेंडा? ऑडिटर अपॉइंटमेंट का, ऑडिट रिपोर्ट, एक इलेक्शन नहीं 2A तो है, बट एजेंडा में जो सेकेंड पॉइंट है ना, उसमें भी अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर 3 साल में नहीं रहेगा। नहीं 3 साल में रहेगा, बट वो लेना है एजेंडा, एनुअल जनरल बॉडी में ही लेना है। एक्चुअली आप अगर हाउसिंग सोसाइटी का देखोगे, वो कंपलसरी पॉइंट है। वो कंपलसरी पॉइंट इसके लिए है कि आप हर साल भी चेंज कर सकते हो ऑडिटर, नॉट नेसेसरी। आप उधर मैक्सिमम टेन्योर दिया है 3 साल का, बट आप हर साल भी कर सकते हो। एक दूसरा, अगर आपको लगता है कि चेंज नहीं करना है, तो वो पर्टिकुलर एजेंडा के सामने आप कोई रेजोल्यूशन पास मत करो, या फिर ऐसा बताओ कि अभी 1 साल ही हुआ है इसको, वी आर कंटिन्यूइंग विद द सेम ऑडिटर फॉर द नेक्स्ट ईयर, दैट इज आल्सो ए रेजोल्यूशन। तो बट कंपलसरी पॉइंट जो आना है वो आना है एजेंडा। आप उसके सामने क्या रेजोल्यूशन पास करते हो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, एजेंडा आना है इज मोर इम्पोर्टेंट। कंटिन्यू और स्टेडी In case of housing societies, it is compulsory element. 2B, the committee shall in the finance, वो छोड़ दीजिए, स्पेसिफिक वाला जो है कोविड का टाइम का पॉइंट है उसको छोड़ दीजिए। There shall be attached to every balance sheet laid before the society in general body meeting a report of the committee with respect to the society's affairs, amounts, if any recommended should be paid in way of dividends, bonus, honorarium, जो भी आपका सरप्लस बन रहा है, जितने भी अकाउंट रिलेटेड चीजें हैं, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, ऑल दोस थिंग्स हैव टू बी प्लेस्ड बिफोर द जनरल बॉडी मीटिंग। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इसी के लिए ही जनरल बॉडी स्पेसिफिकली लिया जाता है, ये मेन एजेंडा है आपका। तो ये सब पॉइंट्स आपको एजीएम में डिसाइड करना है, यू कैन नॉट हैव एन एसडीएम फॉर दिस। लास्ट पॉइंट यही है कि बैलेंस शीट रिलेटेड और ऑडिट रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं, वो सब आपको एनुअल जनरल बॉडी में ही डिसाइड करना है। और जितने भी बजट्स हैं, अलोकेशन ऑफ फंड्स है, ऑनरोरियम है, सैलरीज है, बोनसेस है, डिविडेंड्स है, ये सब डिसाइड करने का एजीएम के पास ही अथॉरिटी है, कमेटी वगैरह तो बस है ही नहीं अथॉरिटी। At every general body meeting, the audited balance sheet, the audited profit and loss, audited report of the financial year, previous financial year, submitted by the auditor, appointed under section 81, rectification report of the earlier year, shall be placed for adoption, and such businesses, other business will be transacted as may be laid down in the bylaws, of which due notice has been given. ये पॉइंट का मतलब यही है, as per the bylaws लिखा है। तो हमारा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का bylaws में बोलता है कि ऑडिटर का पॉइंट भी डालो अपॉइंटमेंट का, इसके लिए हम उसमें ऑडिटर का पॉइंट डालते हैं। हर एक का सोसाइटी का अपना अपना बायलॉज के अंदर का पॉइंट रहेगा, बट ये जो पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है सेक्शन 75 में 75(2) में,
दिस इज कॉमन फॉर ऑल द सोसाइटीज. इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो बट डिलीट भी कर सकते हो. Now, if default is made in calling for a general body meeting, ये भी important point है. 75(5) आपका fill in the blanks में भी आ सकता है, match the following में आ सकता है कि under which provision of the Act, MCS Act, can the for non-conduct of general body meeting can the committee be disqualified? ऐसा आ सकता है. वो section 75(5) जो मैं आपको बता रहा था. 75(5) इसके अंदर आएगा. 75(5) में क्या बोलता है? If any default is made in calling the general body meeting within the prescribed period, that is September के पहले आपने AGM नहीं बुलाया, the registrar may by order declare any officer or member of the committee whose duty it was to call for such meeting and who without reasonable excuse failed to comply with that aforesaid subsection disqualified for being elected for being an officer or a member for a period not exceeding 5 years. तो इस पे भी डिस्क्वालिफिकेशन है कमेटी. 75(5) के अंदर अगर आपने कोई भी ऑफिसर रिस्पांसिबल है, बट कोई भी ऑफिसर रिस्पांसिबल कौन है कमेटी के अंदर, कौन रिस्पांसिबल है? ऑफिस बेयरर. ऑफिस बेयरर जॉइंटली एंड सेवरली है ना. क्यों ऑफिस बेयरर? हमने अभी पढ़ा ना, कमेटी इज जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पांसिबल. क्यों भूल गया? कोई भी डिसीजन दिया जाता है unless and until that person has what? Unless and until the person has committee member has dissented. Unless and until he has dissented in writing and given that to the registrar, he will also be disqualified for 5 years. अगर आपने जनरल बॉडी मीटिंग नहीं बुलाया AGM 30 सितंबर के अंदर, तो पूरा का पूरा कमेटी खारिज हो जाएगी. आप ये नहीं बोल सकते हो कि मुझे नहीं मालूम था, मैं वो मीटिंग में नहीं था, मेरे को इन्होंने बताया नहीं. विल बी डिस्क्वालिफाइड. यू टेक प्रिवेंटिव. आप भी कमेटी में थे, आपको मालूम है 30 सितंबर के अंदर बुलाना है, आपको मालूम है 14 डेज का नोटिस है, तो कम से कम 15 सितंबर को तो नोटिस जाना चाहिए. अगर 30 को करना है तो 15 तक नहीं गया, दैट मींस यू आर इन फॉर सम ट्रबल. तो आपको मालूम होना चाहिए. डेट तो गिनती तो आता है ना, तो आप नहीं बोल सकते हो कि मुझे नहीं मालूम था, मुझे माफ करो. नहीं होगा. विल बी डिस्क्वालिफाइड. My question was, meeting has been conducted and issues were presented before the general body, but the accounts were not adopted. That was my question. नहीं, accounts were not adopted मतलब you are saying that it could not be no resolution could be passed on that particular Adoption of financials. So what reason? Reason has to be very specific. Reason देना पड़ेगा. ऐसे आप नहीं बोल सकते हो. Accounts were not up to the mark. Allocation of interest and principal were not provided. तो आपका देखिए अकाउंट्स अगर आपका सही नहीं है बट आपको अप्रूव कराना है तो आपको सब्जेक्टिव अप्रूवल दे सकते हैं. आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ 1 2 3 4 पॉइंट्स the accounts financials are deemed to be approved subject to rectification of 1 2 3 4. Then rectification has to be filed within. वो ऑडिट रेक्टिफिकेशन है, वो ये रेक्टिफिकेशन नहीं है. बट ऑडिट का रिपोर्ट में आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है करके एक रिपोर्ट आएगा, उसको रेक्टिफाई करके वो फॉर्म में आप दे सकते हो. वो 1 महीने के अंदर आप दे सकते हो, बट उसको रेक्टिफाई करने के लिए 3 महीना भी लगा सकते हो. चले आप समझे? कंप्लायंस रिपोर्ट आपको 1 महीने में फाइल करना है, बट एक्चुअल कंप्लायंस आप 3 महीने के बाद भी कर सकते हो. उसमें आना चाहिए. Because this particular matter will take 3 months to rectify, will rectify by say 31st January. Compliance report में जाना चाहिए वो में, बट काम बाद में हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन ट्रेनिंग का था, कंपलसरी था, आप 1 महीने के अंदर नहीं ले पाओ. 30 सितंबर और 31 अक्टूबर के बीच में नहीं ले पाओ. बट यू कैन राइट दैट द सोसाइटी शैल कंडक्ट एजुकेशन ट्रेनिंग बिफोर 31 मार्च 2025. 30 सितंबर को फाइनेंशियल अडॉप्ट करने हैं. अक्टूबर में न्यू कमेटी आ फाइनेंशियल अडॉप्ट नहीं. नाउ व्हिच इज द लाइक फॉर अडॉप्शन. बोर्ड कमेटी वाली. देखिए कमेटी कोई भी होने दो, किसको भी आने दो. You can take assistance from the earlier committee, but as on today, the present committee which is functioning
has to ultimately file that ना. ताकि आज का दिन आपने responsibility ले लिया मतलब it has shifted. The earlier committee does not have any right to sign any paper today because they are not in office. Submit तो आपको ही करना है. Present managing committee which is in office will only have to expedite that matter. You can take assistance from the earlier. आप उसको ले सकते हो, कर सकते हो. अभी आप बोलोगे कि उसने मेरे को assistance नहीं दिया या वो नहीं देना चाहता है जानबूझ के मेरे को, then पीछे का sections है ना. This is a real big law. We have been advised by the lawyer. You have to take the assistant of registrar. He will send one person to the meeting. You have to conduct a meeting. Registrar, one person, appointed person will be present in the meeting and board committee, board will see, then members will see, and then adoption of. वो अगर आपके बीच में डिस्प्यूट है तो या स्पेसिफिक सिचुएशन बोल रहे हो, जनरल सिचुएशन मैं बोल रहा हूँ. जनरली जो आज के दिन में है कमेटी जिसके पास अथॉरिटी है, दैट कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल टू डू ऑल द एक्ट ना डे टू डे. आप ठीक है, आपको नहीं मालूम था, अभी आप आए पीछे क्या हुआ लास्ट साल का आपको नहीं मालूम था, ठीक है. बट इसके लिए क्या कहा जाता है, बहुत बार आपने देखा भी होगा कमेटी जब बनती है, इट इज अनरिटन रूल कि गए कमेटी में 7-8 लोग थे, उसमें से एटलीस्ट 2-3 लोग को रिटेन करते हैं. द न्यू कमेटी 2 or 3 पीपल आर रिटेन, ताकि क्या एटलीस्ट एक कंटिन्यूटी रहेगा. पिछले वाले क्या चल रहा था वो बताएंगे लोग नए कमेटी को, ये सब हुआ 1 2 3 4 ये सब मुझे पता है, ये क्या है रिटर्न, हाँ ये इसके वजह से, वो कौन सा एंट्री है, वो एंट्री इसको पैसा दिया. तो इसके लिए देयर इज अ कंटिन्यूटी. बट अगर नया कमेटी और पुराना कमेटी का जमीन नहीं रहा, तालमेल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर रजिस्ट्रार को ही बताना पड़ेगा कि हमको पुराना कमेटी से कोई असिस्टेंस मिल नहीं रहा, तो आपका आदमी को भेजो, वो आएगा, फिर उसको भी बुलाएगा, हमको भी बुलाएगा. फिर भी डिफॉल्ट किया तो डिफॉल्ट का आगे का है प्रोविजंस, तो क्या कर सकता है, पिछला कमेटी हो या 5 साल का पहले का भी कमेटी हो, दे आर लायबल फॉर एक्शन. अगर गलती किया रहेगा तो एक्शन लेंगे उसके ऊपर. ठीक है. 6th point, any penalty imposed under section 5 may be recovered in the manner provided of the criminal procedure for the recovery of fine imposed by the magistrate as if such fine were imposed by the magistrate himself. ये इसमें criminal procedure क्यों बोला है मुझे भी नहीं पता. ये नॉर्मल रिकवरी प्रोसीडिंग से रिकवर हो सकता है, बट यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीजर क्यों किया. मैंने एनुअल जनरल बॉडी 30 तारीख को नहीं बुलाया, इसके लिए मैं क्रिमिनल हूँ, ऐसे ही हो रहा है ना ये. बट मैं 30 सितंबर को एजीएम नहीं बुलाया, मेरे ऊपर पेनल्टी लगा तो मैं क्रिमिनल हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई हो रही है. आई पर्सनली डू नॉट नो व्हाई इट इज मेंशन्ड हियर एज क्रिमिनल प्रोसीजर, बट इट कुड बी अ नॉर्मल रिकवरी प्रोसीडिंग्स. जैसा लैंड रेवेन्यू करके पहला बोला था, वो सेम लैंड रेवेन्यू के हिसाब से भी रिकवर कर सकता है. व्हाई दे हैव पुट क्रिमिनल, आई एम नॉट अवेयर. सीरियस क्या होगा, मैटर और बिगड़ेगा. डिस्क्रिशनरी रजिस्ट्रार 75(5) के अंदर रजिस्ट्रार के पास पावर है ऑथराइज्ड ऑफिसर भी अपॉइंट करने का और पेनल्टी भी इम्पोज करने का, और 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई पे सब कुछ कर सकते हैं. This is about 17(5) about annual general body. अभी annual general body का फटाफट से points बोलिए somebody please. क्या क्या है शुरू से लेके एंड तक 7 मार्क का क्वेश्चन है आएगा. We talk about the why AGM is conducted. First of all we talk about first opening हमारा लाइन यही होना चाहिए that the annual body is the supreme authority. First start करो कि the general body of the society is the supreme authority and all major decisions of the society are undertaken in the annual general body meeting and resolutions to that effect are passed. ऐसा करके लिख के फिर आप बाद में शुरू करो. जनरल बॉडी मीटिंग के बारे में बताइए. The annual general body meeting consists of all the members of the society. It has to be called in the proper manner. उसका rules यहाँ पे दिया नहीं है, ये तो एक्ट है. रूल्स में दिया है as per the prescribed number of dates notice has to be given, the agenda has to be specifically mentioned, the date time venue has to be made known to all the members. Then फिर आप इसमें
फिर आप बताओ कि एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में क्या क्या होता है, कब बुलाना चाहिए, टाइमलाइंस क्या है, ऑडिट और इसका क्या रिलेशन है, कितने पीरियड में आपको ऑडिट करके उसके एजेंडा में प्लेस करना है, और फिर उसके बाद क्या क्या एजेंडा पॉइंट्स है एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग का, वो लिखिए 5 से। कोरम आप कहाँ, कोरम भी आएगा ना, कोरम भी आएगा, 100% कोरम आएगा। एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग का क्या है कोरम? एनी जनरल बॉडी मीटिंग, एजीएम छोड़ दो, एनी जनरल बॉडी मीटिंग का क्या कोरम है? हाँ 3/4 नहीं है,